Good afternoon, my dear students and my colleagues. Uh, Welcome in the subject of engineering drawing. So, firstly, I want to appreciate the persons जिन्होंने जो वीडियोस मैंने दो लेक्चर्स की वीडियो जो अभी मैंने शेयर किया है फेसबुक पे, जहाँ लाइव हुआ हूँ फेसबुक बुक पे, तो कुछ पर्सन्स के कुलीग्स के कमेंट्स आए हैं, मैक्सिमम फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड फ्रॉम इंडस्ट्रियल पर्सन्स आल्सो। तो जैसे फर्स्ट कमेंट था उस पे गौरव तलवार सर, जीएमसी अमृतसर। सेकंड गगन सर, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। And R.K. Mahindru sir, retired professor, chemistry, head of department, Khalsa College. Then Nilo Khedi Polytechnical से विकास शर्मा and Vijay Bindra and Mahesh from Ladwa and Harjeet Singh, Dr. Harjeet Singh Goraya from अपना GNDU campus अमृतसर। Professor Narinder Sharma from Amritsar Engineering College, Dr. Ajay Sharma from Amritsar College of Engineering and Technology, Dr. Anil from State Shahid Byan Singh State University, Gurdaspur, and Kiran Ma'am from MSITI Jalandhar, Engineer Vineet Bhatia from Chemical Industry Amritsar, Dr. Rupinder, former lecturer from Global Institute, Dr. Harjot Singh, uh, principal of United ITI Amritsar, and Dr. Suman, electrical department, Thapar University Patiala, Jatinder Balla from Global Institute Amritsar, Principal Wilson sir, ITI Bathinda, Dr. Jagdev Singh Saini sir from Shahid Byan Singh State University Gurdaspur, Dr. Rajneesh Arora, former VC of Punjab Technical University, and Director GMAT, Dr. Goel sir, former director from GMAT, and Dr. Amandeep Singh. He is a forest researcher, especially for the plants and animals. Engineer Alankar Singh, technical trainer from Maruti Suzuki. Dr. Paramjit Singh Pannu from Amritsar Group of Colleges, and Professor Devinder from BO Office Amritsar, and Engineer Kishore Doble from Nagpur, and he is the director of CAT Desk from Nagpur, and Dr. Grover sir, YMCA Faridabad, and Dr. Jagjit Singh, Mechanical Department from Chandigarh University, Dr. Amit Mahajan from Khalsa College of Engineering and Technology, Amritsar, Dr. Yugraj Singh from Khalsa College of Engineering and Technology, Amritsar, Dr. Amarpal Singh, former faculty member from State Byan Singh University, Gurdaspur, Dr. Naveen Beri sir from State University, Gurdaspur, Dr. Sanjeev sir from State University, Gurdaspur, and Professor Paramjit Singh, Government Polytechnical, Amritsar, Dr. SBS Kalsi, Head of Department, IKG PTU Campus, Amritsar, Professor Gagandeep Singh, Department of Mechanical Engineering, Government Polytechnical, Amritsar, Professor Ritinder Ma'am, Department Electrical Engineering from Government Polytechnical, Amritsar, Professor Himashu Tripathi from Global Institute, Amritsar, Professor Richa Sharma from Panjore, Haryana School, and software engineer Mr. Ajay Sharma and Professor Amrinder Singh from GNDU campus Amritsar, Professor Manish
former lecturer from Global Institute, and at present he is working in Meritorious School, Amritsar, as a mathematics teacher. Then Mr. Harish from PIT, Amritsar, Mr. Gagan, ITI, Amritsar, Dr. Inderpal, Inderdeep Singh, IIT Roorkee, Dr. SBS Kalsi, IKG PTU Campus, Amritsar, Professor Nitish Kumar, former lecturer, IKG PTU Campus, Amritsar, and Engineer Pramod from Sunshine Islet Academy. So I thank you all of you for appreciation, and without appreciation and without the guidance all of you, I can't continue these lectures. So thank you very much again for all of you, and I wish you also share my lectures, engineering drawing lectures, with your first year or second year ITI, Polytechnical, and BTech students. So thank you very much, all of you again from my side, and heartily thank you my MTech and PhD guide, Dr. Naveen Beri and Dr. Anil Mahajan from State University Gurdaspur. So thank you all of you. Thank you very much. So now we start the next content of that topic, इंजीनियरिंग स्केल. तो कल हमने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग स्केल. तो इस स्केल में हमने कल कवर किया था कि हाउ मैनी टाइप्स वी कैन यूज ए स्केल, कि ऑलरेडी जो हमारे पास एक इंजीनियरिंग स्केल है, इस इंजीनियरिंग स्केल को हम कितनी तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज कर सकते हैं. तो नॉर्मली यहाँ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि यूजेस एंड टाइप दोनों को कंबाइन कर देते हैं. क्लियर? तो कल भी मैंने थोड़ा इसके ऊपर बात की थी, तो रिकैप कर रहा हूँ अगेन, कल जो थोड़ा किया था उसके ऊपर अभी विद इन 1 or 2 minutes. तो टाइप अलग है, बेसिकली टाइप अलग है, और हमारे पास यूसेस अलग है. एक स्केल को, एक इंजीनियरिंग स्केल को आप तीन तरह से यूज कर सकते हो, जैसे कि कल के सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था, फुल स्केल, रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल, एंड देन एनलार्जिंग स्केल. तो इन द फुल स्केल, when we have the object and having the cross section area less than your drawing sheet, clear, then you can use the full scale. And when you have an object having the cross section area more than your drawing sheet or your CAD panel, then you can draw that object in reducing or reduction scale. And when you have the object very small, very precise object, like a gear in your watch, like a gear in your watch, and like a specially circuit system in your computer, or maybe in your mobile, or maybe in any other panel, circuit system, and we have so many small drawings like that. So then we show that drawing with the enlarged scale, ताकि उसकी विजुअलिटी और क्लैरिटी ऑब्जेक्ट की हमें क्लियर हो सके कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद दिखेगा कैसा, या ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या साइड व्यू कैसा दिखता है, या ओवरऑल ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू और अदर पर्सपेक्टिव व्यूज वगैरह में कैसा दिखता है. क्लियर? तो विद दैट वी कवर द थ्री यूसेस ऑफ स्केल: full scale, reducing or reduction scale, and enlarging scale. Is it clear? So with that three scales, you can use your any object on your drawing sheet. Maybe the object having the same size or less than of the drawing sheet. Maybe the object having the more than your drawing sheet size, bigger than your drawing sheet size, or maybe the object is very precise, very smaller objects. Then you can also draw for the clarity of the object with the enlarging scale. So these are the uses of a scale. So you can use that engineering scale under that three category. So these are the uses category, not these are the type. Not these are the type. Now today we discuss about the type of scale first. Clear? Then in the second content we draw or design
these type of scales step by step. So first, when we start the chapter of scale, then first question is uses of the scale. Already we discussed tomorrow, and with that we also discussed what is the representative fraction. Clear? So we have the type of scale. So in the type of scale, we have the 6 type of scale as per our syllabus. Clear? We have the 6 type of scale as per our syllabus. Number 1 is the plane scale. Number 2 is the diagonal scale. Number 1 is the, I again repeat, number 1 is the plane scale. Here 2 type of word plane used in the engineering drawing. And the pronunciation of both words are same, but the spelling and the meaning of the both words are different. One is the plane. जब वो scale की बात करेगा तो he is talking about PLAIN, plane, plane scale. So when he talk about the spelling about PLAIN, it means he is talking about the scale. Clear? So PLAIN means that is the plane scale. And the other spellings of the plane PLANE, plane. तो जब वो PLANE की बात करेगा, he is talking about the horizontal plane, vertical plane, profile plane, and so many other planes like that. Ground plane and upper plane, lower plane, like that planes. Clear? So when he talking about the plane PLAIN, he is talking about the plane scale. So as per types of scale, we have first plane scale. Clear? Number second is the diagonal scale. DIAGONAL, diagonal scale. Number third one is the isometric scale. And number fourth is the comparative scale. कंपैरेटिव स्केल, ये तीनों तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अभी ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा थोड़ा यही बता दूं क्या है ये. अगर आपने लर्न करने होंगे तो इसके तीन जो लास्ट 3 है इनके ऊपर दोबारा एक लेक्चर दे दूंगा ये कैसे ड्रॉ करते हैं. तो फोर्थ वन इज द कंपैरेटिव स्केल. तो कंपैरेटिव स्केल क्या है कि किसी स्केल के कंपैरिजन में या किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जब हम उसको जब ड्रॉ करेंगे, डिजाइन करेंगे, दैट टाइप ऑफ स्केल इज द कंपैरेटिव स्केल. Next is the vernier scale. Already you read that vernier scale on the vernier caliper in your mechanical workshop. ठीक है. So vernier scale वही scale है जो vernier caliper के ऊपर होता है. ठीक है, जिसकी 10 small division 9 division से coincide करती है. तो वो scale जो रहेगा vernier caliper के ऊपर, that is the vernier scale. Next is the scale of chords. तो different scale के chords इसमें डिजाइन किए जाते हैं. So these are the scale of chords. Clear? So we have the 6 type of scale as per our chapter scale, as per our syllabus: plane scale, diagonal scale, isometric scale, comparative scale, vernier scale and scale of chords. Clear? तो जब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इवन इन एनी यूनिवर्सिटी में भी, इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी, इन पुणे यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड मे बी इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो नॉर्मली ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ स्केल. तो जब वो टाइप ऑफ स्केल की बात करता है तो ही इज टॉकिंग अबाउट दीज 6 टाइप ऑफ स्केल. और स्टूडेंट यहाँ गलती से लिखाते हैं कि फुल स्केल, रिडक्शन स्केल एंड एनलार्जिंग स्केल. नॉट, दैट इज नॉट a type of scale. I again repeat here, that is not a type of scale, that is only uses of scale. And here these are the type of scale. So when we talk about the uses of scale, then you write we have the 3 uses category of a scale for the engineering drawing. Number 1 is full scale, number 2 is diagonal scale, and full scale. Number 2 is reducing or reduction scale, and number 3 is enlarging scale. Clear? Or when we talking about the types of scale, then you can write here plane scale, diagonal scale, isometric scale, vernier scale, comparative scale and scale of chords. Then you write the 6. It means अगर हम यहाँ देखते हैं कि uses कितनी तरह के, 3 तरह के uses. We have the 3 types. Uses category have 3 types, and types of scale category have the 6 category of the type of scale. Clear? Okay. So when now what is the plane scale? First we before the design of that scale, first we cover what is the plane scale. Actually plane scale है क्या? When we follow the 2 units on a scale only, when we follow the 2 units on a scale and after decimal 1 place, when we follow the 2 units only scale or after decimal 1 place, then that is a plane scale. मीन जब हम किसी भी स्केल के ऊपर सिर्फ 2 यूनिट फॉलो करेंगे तो वो स्केल जो है वो प्लेन स्केल कवर करेगा. ठीक है, उस स्केल को हम प्लेन स्केल कवर करेंगे. या कोई ऐसा स्केल अगर हम डिजाइन करेंगे जिसके ऊपर ओनली वी शो द 2 यूनिट्स, देन दैट स्केल अंडर द
टाइप ऑफ प्लेन स्केल। क्लियर? तो जैसे नॉर्मल स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में नॉर्मल जो स्केल होता है, तो इसमें अगर हम एक साइड देखते हैं तो वी फॉलो नॉर्मली 2 यूनिट्स, और नॉर्मल स्केल में हम कौन से 2 यूनिट फॉलो करते हैं? सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। So in that scale, I follow the 2 units only, centimeters and millimeters. Due to that, we can say that is a plane scale. Clear? And not always only 2 units, give meter, centimeter and millimeters. You can only follow 2 units. ठीक है, पहला बड़ा यूनिट और उसके बाद जो दूसरा छोटा यूनिट है, वो दोनों यूनिट कंबाइन साथ साथ फॉलो करते हैं किसी स्केल पे। ठीक है, जैसे मीटर और डेसीमीटर हो गया, ठीक है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर हो गया, लाइक दैट। अगर दो साथ साथ वाले यूनिट फॉलो कर रहे हैं किसी भी स्केल के ऊपर, तो वो स्केल हमारा प्लेन स्केल के अंडर, कैटेगरी के अंदर कवर होगा। ठीक है, और आई आल्सो सेड इन द डेफिनेशन आफ्टर डेसिमल फर्स्ट वी हैव द रीडिंग हियर फर्स्ट 5.7। so what's the meaning? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5.7 सेंटीमीटर, so what is the meaning of that? The meaning of that is 5 centimeter and 7 millimeter. So it means after decimal, how many place? Only 1. So when we follow the 2 units or after decimal 1 place on a scale, then that is a plane scale. Is it clear? Okay, so this is the basic definition of the plane scale. Now the next is diagonal scale. When we follow the 3 units, or after decimal 2 places, अगर मैं इसी रीडिंग को अब ऐसे कर देता हूं कि 5.74 like that, suppose only मीटर कर देता हूं यहाँ पे 5.74 मीटर suppose. तो इट मींस हियर आई फॉलो द 3 यूनिट्स। 5 मीटर, मीटर से छोटा यूनिट कौन सा? नेक्स्ट, व्हाट आर द नेक्स्ट स्मॉल यूनिट आफ्टर द मीटर? डेसीमीटर। तो 5 मीटर, 7 डेसीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्लियर? 5 meter, 7 decimeter and 4 centimeters, suppose like that. If I follow the 3 units, then that is the diagonal scale. Or in that case, you can also say after decimal 2 places. So here we have the after point, we have the 2 places 7 and 4, and here only 1 place 7. So if after decimal only 1 place, then that is under the plane scale. If after decimal we have the 2 places, then that is the diagonal scale. And in the other language, you can say if we follow the 2 units on a scale, then that is a plane scale. If we follow the 3 units on a scale, then that is the diagonal scale. So this is the basic difference between plane and diagonal scale. कभी कभी यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड डायगोनल स्केल। सो यू कैन राइट, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एंड यू कैन राइट हियर 2 पॉइंट्स ओनली। On the plane scale, we follow the 2 units. On the other side, on the diagonal scale, we follow the 3 units. And second number पे, on the plane scale after decimal 1 place, on the other side on the diagonal scale after decimal 2 places. Clear? So this is the major difference between the plane scale as well as diagonal scale. Is it clear? बहुत मतलब 0 लेवल पे जाके आपको समझा दिया पूरा डिटेल में कि प्लेन और डायगोनल में डिफरेंस क्या होगा। अब होप है कि इसके बाद आपको ये याद रहेगा। Clear? So now we cover about the scale. अब after that we cover about the scale. तो ये तो थी डेफिनेशन प्लेन और डायगोनल की। आइसोमेट्रिक की आगे चल के बताऊंगा। तो ये 3 तरह के स्केल आपके सिलेबस में है एज पर योर सिलेबस, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड आइसोमेट्रिक स्केल। पहले आज इन 3 स्केल को स्टेप बाय स्टेप, जहाँ 1 या 2 स्केल को पहले कवर करेंगे, फिर बाकी को कवर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो what is the plane scale? Already we discussed after decimal 2 places, and when we follow the 2 units on a scale, then that is the plane scale. Now we are talking about the design. This is up to here, up to the definition only, and up to the learning what difference, what is the plane and diagonal. Now we coming on the design. Okay? So basically design is what and drawing is what. Normally जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स सीखते हैं, जब हम कैड के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं डिजाइनिंग के ऊपर, तो पहला ही क्वेश्चन वाइवा में ये पुट होता है हमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिजाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड डिजाइन। तो ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केच ड्रॉ कर दिया, मे बी विद द डायमेंशंस एंड मे बी विदाउट द डायमेंशंस, ठीक है, मे बी विद द स्केल एंड मे बी विदाउट द स्केल, ठीक है, देन दैट इज द पार्ट ऑफ ओनली ए ड्राइंग, दैट इज द ग्राफिक पार्ट ओनली ए ड्राइंग। ठीक है, अब उस ड्राइंग का अगर मैंने एनालिसिस किया,
एनालिसिस में मैंने फार्मूला किया उसमें, ठीक है, कैलकुलेशंस की मैंने, तो वो पूरा एनालिसिस जो है वो ड्राइंग का डिजाइन में कन्वर्ट होता चले जाएगा। फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। सपोज वी हैव ए पिलर, we have a pillar and we have some length of the pillar, we show on the drawing having some length and having some dia of the pillar, clear, we show on the drawing. So up to here that is only a drawing, up to here that is only a drawing, ठीक है। स्पेशली आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर नॉर्मली सारे इसको इजीली समझ लेंगे, इसलिए मैं ये एग्जांपल देता हूँ। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द पिलर एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द पिलर। तो अगर मैंने इतना कोई पर्टिकुलर लेंथ पर्टिकुलर डायल लेके एक पिलर को ड्रॉ कर दिया, देन दैट इज ओनली ए ड्राइंग, क्लियर। लेकिन अब आप एनालिसिस कर रहे हो, आप स्टैट प्रो के ऊपर कर रहे हो, सॉफ्टवेयर स्टैट प्रो यूज कर रहे हो, यहाँ तक तो आपने 2D या 3D ऑटोकैड के ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, विद द ऑटोकैड यू कैन इजीली ड्रॉ विद 2D एंड 3D विद द ऑटोकैड। बट एनालिसिस पार्ट आप स्टैट पे कर रहे हो, ठीक है, और जहाँ आप उसके एनसिस के ऊपर कर रहे हो एनालिसिस पार्ट, एनसिस सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो सपोज अगर आप स्टैट पे भी कर रहे हो तो यहाँ पे आप दे रहे हो कि मैं इस पिलर के ऊपर इतने किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा हूं। इस बात को ध्यान से समझना, मैं इस पिलर के ऊपर इतने किलो न्यूटन लोड अप्लाई कर रहा हूं और ये पिलर रैप्चर नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, जहाँ रैप्चर हो रहा है जहाँ ब्रेक हो रहा है, जब कितने किलो न्यूटन लोड अप्लाई करूं कि ये पिलर ब्रेक ना हो, रैप्चर ना हो, अप टू हाउ मच किलो न्यूटन। सपोज आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेंटर डाल रहे हो, सपोज आपके इसके ऊपर, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर पूरा लोड कितना अप्लाई करूं कि ये पूरा पिलर रैप्चर ना हो, इसको अगर मैं साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूं, देन दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन, then that is the part of design. So I think you can easily clear what is the difference between drawing and design. अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंपल 2D 3D ऑब्जेक्ट बना दिया, that is with the dimension or maybe with the without dimension, with the scale or maybe without the scale, तो मैंने बना दिया maybe with the free hand, तो that is the only a drawing, that is only a sketch, only a drawing। अब उस स्केच या उस ड्राइंग के ऊपर मैंने एनालिसिस किया, ठीक है, तो वो एनालिसिस उसके ऊपर उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर है, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैंने डिजाइन किया है, जिस पर्पज के लिए डिजाइन किया ऑब्जेक्ट को, उस पर्पज के लिए वो डिजाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पूरा एनालिसिस क्या रहेगा, डिजाइन रहेगा, ठीक है। तो डिजाइन एंड ड्राइंग बोथ आर कोरिलेट टू ईच अदर, ड्राइंग एंड डिजाइन बोथ आर को। आप एक स्टेयर डिजाइन कर रहे हो, अब स्टेयर का डिजाइन ऐसे कि स्टेयर को राउंड लेके जाना है आपने, लेकिन वो स्टेयर कितना लोड ले रही है, उसके नीचे जो बीम रोटेट कर रहा है वो कितना लोड बेयर कर रहा है, तो स्टेयर को आपने रोटेट करा दिया, उसका अच्छा सा 3D मैक्स में डिजाइन भी बना दिया, लेकिन उसके ऊपर जो लोड आ रहा है स्टेयर्स का, जब कितने परसेंट एक टाइम उतरेंगे, जहाँ एक ब्रिज डिजाइन कर रहे हो, बहुत अच्छा 3D मैक्स में आपने ब्रिज डिजाइन कर दिया, उस ब्रिज के ऊपर से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं एक मिनट में, पर सेकंड में, उन गाड़ियों का जो लोड आ रहा है, जहाँ उस कंक्रीट का जो लोड आ रहा है, जहाँ बीम का जो लोड आ रहा है, उस सारे पार्ट को कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, देन दैट इज द डिजाइन। तो डिजाइन में आगे सेफ्टी फैक्टर भी रख के आगे डिजाइन करते हैं कि इतना होगा, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम इतनी गाड़ियां आ जाए तो ब्रिज ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो दैट ऑल थिंग अंडर द डिजाइन। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इजीली क्लियर हो गया होगा। मैकेनिकल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, तो मैकेनिकल लैंग्वेज में क्या है कि जब हम कार डिजाइन करते हैं, समटाइम द डिजाइन इज फर्स्ट एंड समटाइम द ड्राइंग इज फर्स्ट, ठीक है। अब डिजाइन फर्स्ट कहाँ पे होगा, डिजाइन फर्स्ट वहां पे होगा जहां पे आपने ऑलरेडी कार की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर ली कि इतनी स्पीड पे चाहिए मेरे को गाड़ी, ठीक है, तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग आप गियर बॉक्स डिजाइन करोगे, शाफ्ट डिजाइन करोगे, क्रैंक डिजाइन करोगे, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट स्पीड यू डिजाइन इट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपने डिजाइन आपके माइंड में थी कि इतने हॉर्स पावर पे चलेगी, इतना डिजाइन चाहिए, इतनी शाफ्ट चाहिए, ये गियर बॉक्स चाहिए, एवरीथिंग शुड बी अंडर योर माइंड, ठीक है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। लेकिन समटाइम आपने डिस्कवरी पे देखा होगा कि आजकल जैसे एरोडायनेमिकली गाड़ियां बनती हैं, ठीक है, एरोडायनेमिकली गाड़ियां बनती हैं ताकि विंड वेलोसिटी के उसके साथ ज्यादा स्ट्राइक ना करे, गाड़ी का पिकअप ज्यादा हो, स्पीड ज्यादा हो, क्लियर। तो अगर एरोडायनेमिकली गाड़ियां बनती हैं तो डिस्कवरी में देखा होगा कि उस एरोनॉमिकली शेप को लेने के लिए डिजाइन इंजीनियर वहां पे क्या कर रहे होते हैं, पहले क्ले का मॉडल बनाते हैं, क्ले को किस एंगल पे कट करें, किस एंगल पे उसको करें, फिर उसकी वेलोसिटी मेजर की जाती है, विंड वेलोसिटी कितना प्रेशर आ रहा है, इतनी पिकअप पे कितना प्रेशर जा रहा है, तो एवरीथिंग अंडर दैट,
ठीक है। तो उस केस में पहले हमने क्या किया कि पहले हमने क्ले के मॉडल से एक ड्राइंग बनाई कि हमें कार का आउटर डिजाइन ऐसा चाहिए, और इस आउटर डिजाइन के अकॉर्डिंग आप पिकअप इतना चाहिए, तो डिजाइन फिर साथ साथ होगा कि इतना पिकअप चाहिए। तो समटाइम आपके अगर दिमाग में पहले ही है कि गाड़ी का आउटर मॉडल तो हमने ऐसा ही रखना है, लेकिन अब इसकी पिकअप बढ़ानी है, तो इस केस में डिजाइन आपके माइंड में पहले है कि मैंने इसकी पिकअप बढ़ाने के लिए इसके डिजाइन में क्या क्या चेंजेस करूं। क्लियर ना? तो यहाँ पे आपको कभी कभी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कभी कभी बहुत सारी एर्गोनॉमिकल इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी आपको। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग वी यूज अप्लाइड फॉर दैट पर्पस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिजाइन एंड ड्राइंग। आई थिंक यू कैन इजीली कवर अप टू हियर। सो अब हम बात कर रहे थे कि स्केल को बनाने की। तो अगर मैं उसको प्लेन स्केल को ड्रॉ कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू ड्रॉ ए प्लेन स्केल, अगर मैं सिर्फ उस प्लेन का स्केच ले रहा हूँ, अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, अगर उस प्लेन स्केल का सिर्फ मैं स्केच ले रहा हूँ तो दैट इज ओनली अ ड्राइंग। लेकिन उस प्लेन स्केल को बनाने के लिए अगर मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दैट इज पार्ट अंडर द डिजाइन। क्लियर? तो जब भी हम स्केल बनाएंगे तो पहले डिजाइनिंग की कैलकुलेशन होगी, पहले हमें डिजाइन कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज पर द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द कस्टमर साइड। ठीक है। तो पहले हमें उसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि पीएस गिल में फर्स्ट स्टेटमेंट ही है, पीएस गिल में इसकी स्केल के चैप्टर की फर्स्ट स्टेटमेंट ही है ड्रॉ प्लेन स्केल। तो पहले तो उसने स्केल की कैटेगरी डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा साथ में लिखता हूँ। तो फर्स्ट प्लेन स्केल की कैटेगरी उसने डिस्क्राइब कर दी। क्या कह रहा है? ड्रॉ ए प्लेन स्केल। तो सबसे पहले तो उसने स्केल की कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन कर दी कि आपने किस तरह का स्केल डिजाइन करना है या ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में एज पर द पीएस गिल फर्स्ट स्टेटमेंट ही सेड ड्रॉ ए प्लेन स्केल। ठीक है, एंड मेजर विद दैट स्केल मीटर्स एंड डेसीमीटर। तो उसने ये भी कह दिया कि उस स्केल के साथ आप मीटर्स और एंड डेसीमीटर के यूनिट शो करो। ठीक है, ये भी डिस्क्राइब कर दिया। तो इट मींस 2 यूनिट दे रहा है। तो अगर यहाँ पे प्लेन स्केल ना भी दिया होता तब भी हमें बाय फॉल्ट ये चीज क्लियर होनी चाहिए थी कि ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लेन स्केल बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट 2 यूनिट्स ओनली। ठीक है। तो ही सेड ड्रॉ ए प्लेन स्केल, लेकिन जो दोनों यूनिट आसपास साथ साथ के होने चाहिए। ठीक है ना? ये नहीं कि एक मीटर दे दिया और दूसरा डेसीमीटर छोड़ के तीसरा सेंटीमीटर छोड़ दे दिया, तो फिर बीच वाला यूनिट वो मिस कर गया, फिर वो प्लेन नहीं होगा, फिर वो डायगोनल होगा। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए वो बीच का यूनिट मिस कर रहा है। तो ये आपको यूनिट देखना पड़ेगा कि कौन से यूनिट साथ साथ है। ठीक है। यूनिट्स के बारे में मेरे ख्याल से आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा या तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन इसको यहाँ भी थोड़ा सा मैं कवर कर ही देता हूँ साथ ही, ताकि आपको यूनिट्स में कंफ्यूजन ना पड़े। तो जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट्स था तो मेरे तो टीचर ने मेरे को थर्ड के फोर्थ स्टैंडर्ड में यूनिट्स को याद करने के लिए एक सेंटेंस दिया था, शायद आपको भी दिया होगा। द सेंटेंस इज किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है। तो मेरे को तो आज तक यूनिट इसी सेंटेंस को याद रखा है, यूनिट भूलता नहीं हूँ फिर मैं। तो हियर किंग स्टैंड फॉर किलोमीटर। किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच मीन्स KHDMDCM। तो हियर किंग स्टैंड फॉर, मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा होगा, मैं कैमरा थोड़ा सा भी इधर कर देता हूँ। सो हियर किंग स्टैंड फॉर किलोमीटर, H स्टैंड फॉर हेनरी मीन्स हेनरी स्टैंड फॉर हेक्टोमीटर। ठीक है, डाई स्टैंड फॉर डेकामीटर, एंड किंग हेनरी डाई, मदर स्टैंड फॉर मीटर, डिड नॉट स्टैंड फॉर डेसीमीटर, क्राई स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, एंड मच स्टैंड फॉर मिलीमीटर। सो ये सेंटेंस आप अगर याद रखोगे तो सारी उम्र नहीं भूलोगे आप। मैं तो अभी तक भी ये यूनिट फॉलो करने तो ये सेंटेंस को फटाफट दिमाग में लेके आता हूँ, बिकॉज एज पर द साइंटिस्ट, एज पर ए गुड इंजीनियर, नेवर फेथ ऑन योर मेमोरी, फर्स्ट फेथ ऑन योर स्टैंडर्ड्स। ये याद रखना। कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं इंडस्ट्री में या बड़े बड़े हमारे पास, जहाँ हमने स्पेस शटल हमने लॉन्च करने होते हैं, कि जब हम सोचते हैं कि हमारा माइंड ये कह रहा है तो ये ठीक होगा। नो, ऑन दैट केस ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं? कभी कभी आपका माइंड गलत कह सकता है, बट स्टैंडर्ड नेवर फॉल्स। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इसके लिए यही है, किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच। इस सेंटेंस को दिमाग में रख लो तो आप यूनिट भूलोगे नहीं कभी भी लाइफ में।
तो अगेन आई रिपीट, किंग स्टैंड फॉर किलोमीटर, हेनरी स्टैंड फॉर हेक्टोमीटर, किंग हेनरी डाई स्टैंड फॉर डेकामीटर, मदर स्टैंड फॉर मीटर, did not stand for decimeter, and cry stand for centimeter, and must stand for millimeter. और ये सारे 10-10 की वेरिएशन में है। इनको सीरीज वाइज क्यों रखा हमने इस सेंटेंस को, क्योंकि ऑल आर अंडर द वेरिएशन ऑफ 10 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, 10-10 के डिफरेंस में है ये। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मेरे कहने का ये मीनिंग था कि बीच में कोई भी यूनिट आपने स्केप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। जैसे उसने दे दिया कि फर्स्ट यूनिट मीटर एंड लास्ट सेंटीमीटर, तो इट मींस वो डेसीमीटर को बीच में छोड़ा है जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वहां पे ये सेंटेंस अगेन आपके काम में आएगा कि बीच में कोई यूनिट छूटा तो नहीं है। फिर आपको पता चलेगा कि अगर नहीं छूटा तो वो प्लेन स्केल है, अगर छूट रहा है तो वो 3 रीडिंग ले रहा है तो वो डायगोनल स्केल कवर करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर उसने कंफ्यूज करना होगा। अगर नहीं कंफ्यूज करना होगा तो वो प्रॉपर यूनिट भी देगा एग्जाम में, और साथ साथ आपको वो प्रॉपर बताएगा भी कि ड्रॉ ए प्लेन स्केल और मे बी ड्रॉ ए डायगोनल स्केल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे वो कह रहा था मीटर एंड डेसीमीटर, तो शो द यूनिट्स ऑन द स्केल मीटर एंड डेसीमीटर, इट मींस मीटर और डेसीमीटर साथ साथ के यूनिट है, तो इट मींस दैट इज गो फॉर द स्केल प्लेन स्केल। ठीक है, and now you can go for the plane scale in that case. Is it clear? Okay, so he said draw a plane scale and show the units on meters and decimeter. Clear? And he said on the scale the reading 1 centimeter equal to 1 meter. और वो कह रहा है शो द रीडिंग्स ऑन द स्केल, उस स्केल के ऊपर जो आपकी रीडिंग शो होनी चाहिए वो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमने पढ़ा था ना कल कि 1 इक्वल टू 2 मींस एक यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमने कल ये यूज किया था यूजेस ऑफ स्केल में कि 2 इक्वल टू 1 मींस 2 यूनिट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हमने ये यूज किया था कि 1 इक्वल टू 1 मींस एक यूनिट एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स द मीनिंग ऑफ दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मींस कि उस स्केल के ऊपर आपका जो 1 सेंटीमीटर यूनिट है दैट रिप्रेजेंट द 1 मीटर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द this statement 1 centimeter equal to 1 meter, and lastly show the distance on it 12.4 meters, और लास्ट में वो कह रहा है 12.4 मीटर का डिस्टेंस उसके ऊपर शो करो। ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट एज पर यूर PS Gill प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट इन द प्लेन स्केल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम प्लेन स्केल को डिजाइन करेंगे पहले कि प्लेन स्केल को डिजाइन कैसे करना है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है इसमें, सिर्फ 2-3 फार्मूला है, विद दैट यू कैन इजीली डिजाइन द प्लेन स्केल। तो डिजाइन इज कैलकुलेशन, व्हेन यू कैलकुलेट दैट देन यू कैन इजीली ड्रॉ इट। तो गो फॉर द स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, लिसन, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि कैलकुलेशन इज वेरी इजी, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है और स्टूडेंट वहां पे ये सोचते हैं कि कैलकुलेशन बहुत इजी है, वी आर स्कॉलर, तो हम इसको हाई फाई ऐसे उड़ा देते हैं, कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हैं और प्लेन स्केल ड्रॉ कर देते हैं। नो, अगर वहां पे कोई प्रॉपर ड्राइंग का अच्छा टीचर चेक कर रहा है तो वो 8 नंबर के क्वेश्चन को सिर्फ 4 नंबर देगा। जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है देन ही ओनली गिव द 2 मार्क्स, बिकॉज डिजाइनिंग जो कैलकुलेशन है वो तो आपने अपने ब्रेन में ही कर ली। अब आपने अपने ब्रेन में कैलकुलेशन कर ली तो एग्जामिनर को क्या पता यू नो अबाउट द फार्मूला, यू नो अबाउट द कैलकुलेशन, और यस और नॉट। ये भी तो हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन साथी की शीट से देखी नहीं और आपने स्केल नकल मार के ड्रॉ कर दिया। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं ड्रॉ करोगे तब तक उसको क्लियर नहीं होगा कि यू नो इट और नॉट। ठीक है ना, फॉलो कर रहे हो ना मेरी बात? ओके, तो सेम ऐसे ही कैलकुलेशन, कोई भी स्केल है पहले उसकी कैलकुलेशन डिजाइनिंग करनी बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 1 इज दैट इज द RF। किसी भी स्केल को, अब यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, किसी भी स्केल को डिजाइन करने के लिए सिर्फ हमें 3 चीजें चाहिए। वी रिक्वायर ओनली मेजर 3 थिंग्स फॉर डिजाइन ऑफ एनी स्केल, मे बी प्लेन स्केल, मे बी डायगोनल स्केल। दैट 3 थिंग्स आर, फर्स्ट वन इज द RF। RF ऑलरेडी हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। व्हाट इज RF? दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, नॉट अ फैक्टर।
Student always say here factor, not factor, that is the representative fraction. Again I repeat, that is the representative fraction. और इसका फार्मूला क्या है? लेंथ ऑफ ए लाइन, कल हमने डिस्कस किया था वैसे, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट divided by actual length of a line on object, और समटाइम पूरे ऑब्जेक्ट की लेंथ दी होती है और ऑब्जेक्ट. So this is the formula for find out the RF. Means length of a line on the drawing sheet divided by actual length of a line on the object, or maybe the full length of that object. So this is the formula for that. Second thing we need for that, चलो मैं वन बाय वन कैलकुलेट भी करता हूं पहले इसको. तो एज पर दिस स्टेटमेंट RF क्या आया फिर? What is the RF as per this statement? तो इन दैट स्टेटमेंट याद रखना बेटे, यहाँ पे एक चीज अच्छी तरह याद रखना, ड्राइंग इज a new subject for you because you are in first year, maybe first sem, maybe second, or in some colleges that is maybe in third sem. So you are new for the engineering drawing because that is not like a physics, like a chemistry, like a mathematics already, जिसके थोड़े बहुत आपको फंडास क्लियर होंगे कि 8th 10th या +2 स्टैंडर्ड तक. ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्राइंग आप लोगों को ITI लेवल से समझा रहा हूँ. इसमें ITI, क्योंकि इस ग्रुप में ITI के भी स्टूडेंट्स होंगे, पॉलिटेक्निकल के भी होंगे और बीटेक के भी होंगे. तो डिजाइन, सॉरी हम ड्राइंग की बात कर रहे थे. तो ड्राइंग इज ए न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. तो ड्राइंग में ये है कि यहाँ पे वो जो आर्टिस्टिक ड्राइंग है उससे थोड़ी सी ये डिफरेंट ड्राइंग है. इंजीनियरिंग ड्राइंग ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है कि डिफरेंट है तो समझ नहीं आएगी, इजीली आएगी. लेकिन इसमें ड्राइंग में नॉर्मली स्टूडेंट्स को, आई हैव द 22 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेम सब्जेक्ट. ठीक है, तो नॉर्मली जहाँ तक मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि पहली बार स्टेटमेंट पढ़ी, प्रॉब्लम पढ़ी तो हाथ खड़े कर दिए कि नहीं समझ आ रही. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ड्राइंग की स्टेटमेंट को आपने लाइफ के प्रैक्टिकल की कोई प्रॉब्लम की तरह लेना है. लाइफ में कोई प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम है तो उस एग्जांपल में हम ये चीज कवर कर रहे हैं. सपोज कि अगर आपकी एक टैप है, वाटर टैप है, तो वाटर टैप में अगर एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है तो आपने नेक डाई में फर्स्ट स्टेप में देखा कि एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा है, वो सिर्फ अभी आपके लिए पानी गिर रहा है. ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने वाटर टैप को टाइट किया, या तो पानी गिरना बंद हो जाएगा या फिर गिरता रहेगा. दो चांसेस हो सकते हैं. थर्ड स्टेप में अगर वो बंद नहीं हुआ तो फिर क्या हो सकता है, या तो वाटर टैप का वो जो थ्रेड है वो लूज होगा, है ना, जहाँ उसमें जो वॉशर डली हुई है वो लूज होगी, है ना, जहाँ उसमें जो कैविटी में गैप होता है वो लूज होगा, जहाँ उसमें जो सिलेंडर है, डिस्क है, उसमें जो डली हुई वो लूज होगी. तो स्टेप बाय स्टेप हमें देखना पड़ेगा. तो सेम जैसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है. तो ड्राइंग प्रॉब्लम सेम लाइक दैट. ड्राइंग की प्रॉब्लम को कभी कभी क्या होता है कि कभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मेरे को भी अभी तक कभी दूसरी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई क्वेश्चन पुट होता है तो कभी कभी एक दो बार पढ़ के पहले समझना पड़ता है कि वो पूछ क्या रहा है. ठीक है, तो ड्राइंग इज सेम लाइक दैट सब्जेक्ट कि आप प्रॉब्लम को जब तक 1 2 3 4 बार पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि वो पूछ क्या रहा है. धीरे धीरे प्रॉब्लम पहली बार पढ़ी नहीं समझ आई, दोबारा उसको रीड करो, स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को रीड करो कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है प्रॉब्लम में. ठीक है, और जब आप स्टेप बाय स्टेप रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि व्हाट ही इज आस्किंग इन द प्रॉब्लम. तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप इजीली उसको ड्रॉ और डिजाइन भी कर लोगे. लेकिन जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी तब तक आप उसको कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो सेम नॉट इन द ड्राइंग, सभी सब्जेक्ट्स में यही होता है ऑलमोस्ट. जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आती आप उसको हैंडल नहीं कर पाते, सॉल्व नहीं कर पाते. जब आपको समझ आ जाती है यू कैन इजीली सॉल्व कि यहाँ ये फार्मूला पुट होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा. तो सेम ड्राइंग को भी ऐसे ही लेना है. ठीक है, डोंट अफ्रेड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. याद रखना ये सब्जेक्ट आपको अगर एक बार आ गया तो पूरी उम्र आपको भूलेगा नहीं फिर, अगर एक बार इसके फंडास आपको क्लियर हो गए अच्छी तरह. क्लियर? तो ही इज टॉकिंग अबाउट द आरएफ. तो आरएफ इस स्टेटमेंट में आप देखो जो मैंने अभी बात कवर की थी, इस स्टेटमेंट में आरएफ के बारे में वो क्या कह रहा है. व्हाट इज द आरएफ? स्टेटमेंट में आरएफ हमें कहीं दिख रहा है, मिल रहा है आरएफ? अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, वो स्टेटमेंट में कह रहा है ड्रॉ ए प्लेन स्केल.
तो यहाँ इस स्टेप से क्लियर हो गया कि प्लेन स्केल ड्रॉ करने की बात कर रहा है। सेकंड स्टेप में कह रहा है शो द यूनिट्स ऑन मीटर एंड डेसीमीटर। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि वो दो यूनिट कह रहा है कि प्रॉब्लम के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर, जहाँ स्केल के ऊपर ड्रॉ करो, जहाँ शो करो मीटर और डेसीमीटर। थर्ड स्टेप में जाके वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। यहां से आपको इसका आरएफ का आंसर मिलेगा। ही सेड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि आपके स्केल के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, जब करेगी, जब आप उसको करवाओगे। क्लियर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का ये मतलब है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा आरएफ का। लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट ही सेड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ए टू बी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 मीटर को। तो इसका अपने आप यहाँ आपको आंसर मिलेगा। ही सेड आरएफ इक्वल टू लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किसको कर रही है? 1 मीटर को। जैसे आपके घर के मैप के ऊपर सपोज आपकी 90 फीट की लेंथ है घर की, सपोज प्लॉट की, तो 90 फीट की लेंथ को आप सपोज 9 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी है? 90 फीट, लेकिन रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो? 1 सेंटीमीटर से, सपोज या 9 सेंटीमीटर से। तो लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट उसमें कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर। और एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? 90 फीट। तो सेम ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का मीनिंग है कि 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट 1 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट दैट इज 1 मीटर। So this is your RF. This is your RF. And second thing we need units conversion. Units conversion. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को फिर प्रॉब्लम आती है एग्जाम में कि यूनिट्स को कन्वर्ट किस में करें? यूनिट्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, यूनिट को इंचेस में कन्वर्ट करें, फीट्स में कन्वर्ट करें, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करें, डेकामीटर में करें या किलोमीटर में करें, किस में कन्वर्ट करें? तो ये आपने स्टेटमेंट में देखना है कि वो आप उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट में देखना है। आपको नॉर्मली आपकी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, आप सूट सिलाते हो, यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है 5 मीटर क्लॉथ, तो आप नॉर्मली शॉपकीपर को जाके कहते हो वी नीड द 5 मीटर क्लॉथ। ये थोड़ी कहते हो 5000 सेंटीमीटर क्लॉथ दे दो मेरे को। दैट इज आल्सो कंफ्यूज, क्योंकि जो यूनिट वो फॉलो कर रहा है वही यूनिट आपको बोलने पड़ेंगे। क्लियर? तो जो यूनिट आपकी ड्राइंग मांग रही है, जो यूनिट आपका वेंडर मांग रहा है, जो यूनिट आपकी इंडस्ट्री मांग रही है, या जो यूनिट आपकी स्टेटमेंट मांग रही है, आपको वही यूनिट फॉलो करने होंगे। क्लियर? एंड हियर सेड he said show the unit 12.4 meters, 12.4 meters। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट तो 12.4 मीटर हमें शो करने होंगे, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो स्केल होते हैं दैट इज इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। तो एज पर दैट स्टैंडर्ड ऑफ स्केल्स, ऐसा नहीं है कि मीटर्स के स्केल नहीं बनते, वो भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े स्केल हो जाएंगे, इतने बड़े रखने कहाँ पे। तो as per the standards we follow the meter, centimeters and millimeter scales. So due to that standards, normal standards we follow in the industry meters, centimeter and millimeter scale. So due to that standards we convert the whole units into meters, centimeters and millimeters. तो नॉर्मल स्केल आपके सेंटीमीटर्स में होते हैं, चाहे आप मैकेनिकल ड्राइंग कर रहे हो, चाहे आर्किटेक्ट ड्राइंग कर रहे हो, चाहे सिविल, चाहे कोई भी ड्राइंग कर रहे हो, तो सेंटीमीटर के यूनिट नॉर्मली फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट फर्स्ट। तो सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। तो आरएफ के लिए ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही था, तो मीटर भाई साहब जो है हमारे पास वो सेंटीमीटर में नहीं है, उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर, यहाँ डायरेक्ट नहीं जाना, यहाँ डायरेक्ट मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट 100 कर दो। नो, गो फॉर द अगेन, गो फॉर द स्टैंडर्ड, गो फॉर द स्टेप बाय स्टेप। तो 1 मीटर इक्वल टू व्हाट? सी अगेन, किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, सी अगेन दिस वन, किंग हेनरी डाई, मदर डिड नॉट क्राई मच। हियर 1 मीटर इक्वल टू फर्स्ट व्हाट? 10 डेसीमीटर। तो फर्स्ट 1 into 10 and again 1 decimeter equal to 10 centimeter, again 10. So now your all units are converted into centimeters. So like that, step by step, go for step by step, ताकि आपकी,
क्योंकि इधर एक भी जीरो इधर उधर फिसल गई तो जहां आपकी स्केल की लेंथ 10 सेंटीमीटर आनी है वहां 100 सेंटीमीटर आ सकती है या 1 सेंटीमीटर रह सकती है, तो उससे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर द स्टैंडर्ड्स। कितना भी आपका ब्रेन कहे कि नो आई नो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, नो डाउट आपका ब्रेन कह रहा है यू आर गुड, यू आर इंटेलिजेंट, बट अगेन चेक द स्टैंडर्ड्स। क्लियर? सो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बिकॉज दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो व्हाट इज द आरएफ? आरएफ इक्वल टू 1/100। सो यू कैन कैलकुलेट दिस with that step. You can calculate every type of RF with that formula, with that step easily. Is it clear? And with that you can also convert the units. Third thing we need required for that design scale, LOS. Third thing we need, that is the LOS. LOS means length of scale, कि स्केल की लेंथ को सिर्फ मैं 30 सेंटीमीटर रखूं या मैं उसको 50 सेंटीमीटर रखूं या 80 सेंटीमीटर रखूं। क्लियर? इट डिपेंड अपॉन योर ड्राइंग। सॉरी, अगर आप कोई बहुत लंबी चौड़ी ड्राइंग बना रहे हो तो डेफिनेटली स्केल की लेंथ बड़ी होगी। सॉरी, अगर कोई छोटी ड्राइंग है तो उसके लिए 10 या 15 या 20 सेंटीमीटर का भी स्केल चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन आई रिपीट हियर, नॉर्मली एज पर द स्टैंडर्ड 30 सेंटीमीटर स्केल इज सफिशिएंट, 15 to 30 सेंटीमीटर स्केल इज सफिशिएंट फॉर ड्रॉ ए ड्राइंग इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर द स्टैंडर्ड। तो एलओएस वी कैलकुलेट हियर, एलओएस की फर्स्ट एग्जाम में यहाँ ये भी क्वेश्चन पुट होता है, जैसे आरएफ पुट होता है, व्हाट इज द आरएफ? तो कल हमने डिस्कस किया था कि आरएफ इज व्हाट? आरएफ इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड दैट इज एज पर द फार्मूला आरएफ equal to length of a line on drawing sheet divided by actual length of a object on the drawing sheet, that is the RF. Clear? And second thing is LOS. LOS is length of scale. तो लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने का भी हमारे पास अगेन वही हमें फार्मूला, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है? RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर और measure up to. So this is the formula for find out the LOS. तो एग्जाम में क्वेश्चन पुट होगा व्हाट इज द LOS? तो फर्स्ट यू कैन राइट हियर LOS इज द लेंथ ऑफ स्केल, देन यू कैन राइट द फार्मूला LOS इक्वल टू RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर और मेजर अप टू विद द स्केल, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंड आउट द RF। तो इसके अकॉर्डिंग LOS क्या हो गया? एज पर दिस स्टेटमेंट LOS क्या हो गया? ऑलरेडी यू कैलकुलेट द RF अपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज द 1/100। तो LOS इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर एंड मेजर अप टू। अगेन फॉर दैट, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ गया, इन द स्टेटमेंट ही सेड लास्टली मेजर विथ in the statement as per PS Gill, measure with 14 meters. वो स्टेटमेंट में कह रहा है मेजर द लेंथ ऑफ दिस स्केल 14 मीटर्स। तो उसने कंडीशन ये रख दी कि ऐसा स्केल आपने डिजाइन करना है जिसको एक ही बार लगाओ, एक ही बार उस स्केल को आप लगाओ ड्राइंग शीट पे या ड्राइंग बोर्ड पे, तो आप 14 मीटर की लेंथ मेजर कर सको। बार बार लगा के तो चाहे आप अमृतसर से दिल्ली तक चले जाओ, लेकिन एक ही बार लगाओ तो इजीली 14 मीटर की लेंथ वो मेजर कर सके या शो हो उस स्केल के ऊपर। क्लियर? तो एज पर द स्टेटमेंट हमारे पास क्या था? LOS RF हमने कैलकुलेट कर लिया 1/100 और फार्मूला क्या था फॉर फाइंड आउट द LOS RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ कैन बी मेजर और मेजर अप टू। सो एज पर द स्टेटमेंट ही ऑलरेडी गिवन मेजर अप टू 14 मीटर्स। तो मेजर अप टू क्या आ गया यहाँ पे? इनटू 14 मीटर्स। क्लियर? लेकिन अगेन कौन सा यूनिट है यहाँ पे? मीटर, बट हियर अगेन कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर। तो ये याद रखना कि स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में यूनिट जिसमें भी कन्वर्ट कर रहे हो आप, सभी यूनिट्स को आप उसी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते चले जाओगे। स्टेटमेंट के यहाँ स्टार्टिंग में RF के यहाँ स्टार्टिंग में सभी को अगर मीटर में कन्वर्ट किया था तो यहाँ सभी को मीटर में कन्वर्ट करते, किलोमीटर में किया था तो किलोमीटर में कर दे। सपोज यू आर ए रोड ट्रैक इंजीनियर, तो वहां पे नेचुरली रोड तो बनती है मीटर्स में, किलोमीटर्स में या मीटर्स में, तो डेफिनेटली वहां हम किलोमीटर या मीटर के यूनिट फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हियर वी ऑल यूनिट्स आर कन्वर्टेड बिकॉज अवर नॉर्मल स्केल। यहाँ ये भी क्वेश्चन पुट हो जाता है
कि क्यों हम सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज अवर नॉर्मल स्केल, अवर स्टैंडर्ड स्केल आर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स, ड्यू टू दैट ऑल यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स. क्लियर? सो हियर again 14 meters converted into centimeters. कैसे? Because again from that King Henry die formula से 1 meter equal to 10 decimeter and 1 decimeter equal to 10 centimeters. So according to that 14 into 100. Is it clear? So 100 से 100 कट गया भैया, तो LOS कितना आ गया आपके पास 14. तो 14 LOS के हमेशा यूनिट होंगे, याद रखना. RF के कोई यूनिट नहीं होंगे बिकॉज RF इज द फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता. बट LOS के हमेशा यूनिट्स होंगे. कौन से यूनिट्स होंगे? अभी तक सभी यूनिट्स को जिसमें कन्वर्ट करते आ रहे हो, आपने किस में कन्वर्ट कर दिया था? सेंटीमीटर्स में. तो डेफिनेटली इसके कौन से यूनिट्स होंगे? अब सेंटीमीटर. सो यू कैन फाइंड हियर विद दैट LOS इज 14 सेंटीमीटर. Clear? So with that formula, with that steps, with that 3 steps, you can easily calculation or design a scale. तो आपने किसी भी स्केल को डिजाइन करने के लिए कैलकुलेशन इजीली इसकी कर दी है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको डिजाइन कैसे करना है. ठीक है? तो अब हमने क्या क्या इसमें फाइंड आउट किया. मैंने ड्रॉ भी करना है इसलिए मैं थोड़ा इसको रेज ही करके लिख लेता हूँ. एक हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया था, नॉर्मली 14 सेंटीमीटर ही फाइंड आउट किया. LOS हमने, RF तो हो गया, LOS हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 14 सेंटीमीटर. क्योंकि हमें मेन LOS तो पहले चाहिए ताकि हमें ये क्लियर हो कि हमने स्केल की लेंथ कितनी रखनी है. सो दैट इज वी कैलकुलेटेड 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर ली. क्लियर? 14 सेंटीमीटर. up to here we have the calculation and designing part. Now we start the drawing part. ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिजाइन एंड कैलकुलेशन, डिजाइन एंड ड्राइंग बोथ आर कोरिलेट टू ईच अदर. यहाँ पे पहले डिजाइन हुआ, अब ड्राइंग होगी. क्लियर? सो दिस इज द डिजाइनिंग पार्ट. नाउ वी स्टार्ट द ड्राइंग पार्ट. ठीक है? तो ड्राइंग पार्ट में क्या करना है? सबसे पहले हमने जितनी लेंथ ऑफ स्केल, अब ध्यान से देखो ये स्केल ड्रॉ कैसे होगा. सबसे पहले जितनी लेंथ ऑफ स्केल हमने ड्रॉ की, सॉरी कैलकुलेट की, उतनी लंबी हमने लाइन ड्रॉ कर दी. कितनी लेंथ ऑफ स्केल हमने कैलकुलेट की थी? 14 सेंटीमीटर. तो हमने 14 सेंटीमीटर लंबी सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी. वी मेक ए लाइन एंड दैट इज हाउ मच? 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. सपोज लाइक दैट, लाइक दिस. ठीक है? तो 14 सेंटीमीटर लंबी अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज A to B. दैट इज हाउ मच? 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है? ठीक है? वैसे यहाँ A to B लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि A to B हमने एक 14 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी. क्लियर? नाउ वी आर द सेकंड स्टेप. याद रखना कोई भी स्केल एक लाइन नहीं हो सकता. एनी स्केल इज नॉट ए लाइन. अगर वो सिर्फ एक लाइन है then that is a thread, not a scale. You can use a thread for the measurement but that is not a scale because हर स्केल की कोई ना कोई यहाँ पे एक width होती है. Clear? Every scale having some width. ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी but this one is its width. तो नॉर्मल बुक्स में ये दिया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड स्केल की बुक पढ़ते हैं, वहाँ पे एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड है कि अगर स्केल की लेंथ 0 to 10 सेंटीमीटर हमने रखनी है तो हम उसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट रखते हैं. अगर स्केल की लेंथ 0 to 20 सेंटीमीटर आ रही है तो उसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर के आसपास रख लेंगे. ये एक सिंपल सा अपने दिमाग में रख लो, बट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट सिंपल सा दिमाग में रख लो कि हमने विड्थ कितनी लेनी है. और स्केल की लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो उसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर आएगी. एंड मोर देन 30 जब वो होगी तो उसकी 4, 5, 6 या 7 हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि स्केल की लेंथ अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये ड्राफ्टर का स्केल है और इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो अगर दूसरे ड्राफ्टर के स्केल के साथ मैं इसकी विड्थ मेजर करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी विड्थ मेरे पास ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है. लेकिन ये स्केल मेरे पास 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो इसकी विड्थ डेफिनेटली 3 से ज्यादा होगी. यस, इसकी विड्थ मेरे पास 5 सेंटीमीटर से अबव आ रही है. तो इट मीन जैसे जैसे स्केल की लेंथ बढ़ती है हम विड्थ बढ़ाते हैं क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए. अदरवाइज ये कैंटिलीवर की तरह वर्क करेगा और इट कैन बी ब्रेक इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ. तो नॉर्मली कोई भी स्केल है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसकी विड्थ जरूर रखनी है, सिर्फ उसको एक लाइन में ड्रॉ नहीं कर देना. ठीक है?
तो उस जो हमने एक सिंपल सा स्टैंडर्ड दिमाग में रखा था उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ कितनी आई 20 सेंटीमीटर। तो इसकी विड्थ अगर हमने हाइट इसकी या विड्थ कह लो रख दी 2 सेंटीमीटर पहले ऊपर, सो वी मार्क इट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ साइड फर्स्ट। तो इसको हमने 2 सेंटीमीटर विड्थ को रख के इसको हमने स्केल को पहले एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर दिया। We make a rectangle shape like that. So this is the rectangle. अब इस स्केल के अंदर हमने अपना पूरा प्लेन स्केल जो है वो ड्रॉ करना है, डिजाइन करना है, बेसिकली ड्रॉ करना है। डिजाइन कैलकुलेशन बात तो हो गया, क्लियर? ठीक है जी। तो ये लेंथ कितनी थी 14, ये लेंथ कहाँ से आई एलओएस से। एलओएस से ये जितनी एलओएस की लेंथ आएगी उतनी बड़ी लेंथ ड्रॉ कर दी और फिर इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा कि वो लेंथ किस कैटेगरी में आ रही है 0 to 20, वहाँ 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल हमने सबसे पहले ड्रॉ कर दिया। वी मेक ए रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर फर्स्ट, क्लियर? नेक्स्ट अगेन वी गो ऑन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे। वो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि मेजर अप टू, इसके ऊपर ध्यान देंगे। मेजर अप टू, वो कहता है एक ऐसा स्केल आपने डिजाइन करना है जिसके साथ आप एक ही बार उस स्केल को लगाओ तो 14 मीटर की लेंथ को आप मेजर कर सको। सो इट इज द मीनिंग ऑफ मेजर अप टू। बार बार को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ही बार लगाओ तो 14 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर कर सको। बार बार लगा के तो चाहे आप अमृतसर से दिल्ली तक चले जाओ, ठीक है? तो मेजर अप टू 14 मीटर तक आप उसको मेजर कर सको, 14 मीटर तक मेजर कर सको, क्लियर? ओके, तो 14 मीटर तक मेजर तो हमने करना है और स्टेटमेंट में और देखना है। और एक चीज वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इसको भी कवर करना है। ही सेड कि शो ऑन द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो उसका मतलब सीधा ही हो गया कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करे। तो अगर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास ऑलरेडी कितनी लेंथ हमने ड्रॉ किया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर के एक एक सेंटीमीटर के 14 पार्ट्स कर देंगे, 14 पार्ट्स कर देंगे तो डेफिनेटली 1 पार्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड दैट रिप्रेजेंट द 1 मीटर। तो 14 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली 14 मीटर को रिप्रेजेंट कर जाएंगे। तो एक सौ सीधा सा फॉर्मूला ये स्टेप है कि एक एक सेंटीमीटर के स्केल के साथ मार्किंग लें और उसको हम कट कर दें 14 पार्ट्स में और आपका ऑटोमेटिकली जो रेक्टेंगल है वो 14 मीटर को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। बिकॉज 14 मीटर ही हमने लेंथ 14 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ की है और 14 सेंटीमीटर के एक एक सेंटीमीटर के 14 पार्ट कर दिए तो वो 14 सेंटीमीटर हो गया और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो 14 मीटर को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। इस मेथड से मेजर अप टू 14 मीटर की रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएगी। सो सिंपल, क्लियर? But here my question is again here, if he said measure the length with that scale not 14 meters, if he said measure the length, measure up to the length with this scale 16 meters, अगर वो ये कह रहा है कि आप 14 मीटर नहीं इस स्केल के साथ आपने 16 मीटर की लेंथ मेजर करनी है तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, इस लाइन को मुझे 14 पार्ट्स में नहीं 16 पार्ट्स में मुझे कट करना पड़ेगा। 16 पार्ट्स में मुझे कट करना पड़ेगा, 14 में नहीं, ठीक है? क्योंकि हमने स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट देखनी है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर स्टेटमेंट, क्लियर? तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो नाउ फॉर दैट वी हैव ए मेथड, विद दैट मेथड यू कैन cut a line into equal parts, very easy method, not a tough method, and with that method you can cut a line into equal required parts, ठीक है? So see what is that method. With that method firstly draw a acute angle from the left hand side lower corner, make a acute angle first, make a acute angle means less than 90 degree, but here not hard and fast rule, it is better near about 30-35 डिग्री के आसपास अगर आप एंगल ले लोगे तो ये स्केल थोड़ा अच्छा देखेगा। जितना एंगल और बड़ा लोगे 60 डिग्री लोगे तो ये लाइन और नीचे जाएगी और ड्राइंग शीट के ऊपर और स्पेस वेस्ट होगी, और ज्यादा कम लोगे 10 डिग्री तो वो बिल्कुल साथ साथ जुड़ा लगेगा, कंसाइड करेगा तो क्लियर नहीं होगी पिक्चर।
तो 30 डिग्री के आसपास इट्स सफिशिएंट। अब इस एंगल को आपने उतने पार्ट्स में कट करना है जितने पार्ट्स में आपने स्केल के पार्ट्स को कट करना है। ठीक है, स्केल के पार्ट्स को कितने में कहा था उसने, मेजर अप टू 14। ठीक है, और हमें 14 पार्ट्स में कट करना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर? सो आई ओपन द कंपास ऑन एनी डिस्टेंस। आप यहाँ पे 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो। यू कैन मेक ए डिस्टेंस एनी वन, बट दैट डिस्टेंस it should be constant from starting point to the end point. So open the compass at the same distance, clear, and cut that line into equal parts. Suppose 14 parts है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So again count here, 1 1, yes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So cut that line into equal parts with your compass and divider, but it should be clear again, the distance from the one part to the other part, it should be constant. Clear? You can take any distance, 5 mm, 1 centimeter, you can take any, but it should be constant from start to end. Sorry. It should be constant from start to end. Clear? Now after that, what do you do here? After that, open your drafter long scale. आपका ड्राफ्टर शीट के ऊपर ऐसे फिक्स होगा और आपके ड्राफ्टर का जो हॉरिजॉन्टल स्केल होगा, आपने नोब को लूज करके हॉरिजॉन्टल स्केल को आपने इस एंगल पे खोल देना है, लाइक दैट, गिवन एंगल 30 डिग्री के आसपास जो एंगल था, और वहीं से अपने ड्राफ्टर की नोब को टाइट कर देना है। इज इट क्लियर? जब ड्राफ्टर की नोब को टाइट कर दोगे तो ड्राफ्टर पे एक स्केल को अगर आप ऐसे खेलोगे तो दूसरा अपोजिट स्केल हमेशा इसके 90 डिग्री वर्टिकल जाएगा। क्लियर? क्योंकि 90 डिग्री आपस में एंगल है, तो दूसरा स्केल हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। सो ड्रॉ द ऑल परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम दैट 14 पार्ट्स। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? सपोज ड्राफ्टर का अपोजिट स्केल आपका ये था, लाइक दिस। तो सबसे पहले अपोजिट स्केल से, वर्टिकल स्केल से मैंने लास्ट पार्ट को 14 वाली लास्ट लाइन से मीट करवा दिया, लाइक दिस। सी इट, लाइक दिस। अगेन सी इट। आई ओपन द ड्राफ्टर scale horizontal at the acute angle and tight the knob from here and use the opposite scale that should be perpendicular to the acute angle and use that scale, and with the help of that scale meet that points and 14 points and end of that line, like this. Is it clear? और अपने ड्राफ्टर के स्केल को इसी एंगल पे टाइट कर देना है। Tight the same angle of your drafter scale because the all line should be parallel to there. All line should be parallel to the first line. So वहीं पे मैंने उसको टाइट कर दिया, तो अगर मैंने इसको यहीं पे टाइट कर दिया तो सारी लाइन ऑटोमेटिकली इस स्केल के साथ पैरेलल चलती जाएंगी, लाइक दिस। सो 1 देन 2 देन 3। यहाँ पे मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है, थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो सकती है, बट आई विल ट्राई। It should be parallel to the other lines, so that all lines should be parallel to the first line. So with that method, your scale length divided into equal required parts easily. So with that method, you can divide a line into equal parts in any quantity. अगर आप उसको 14 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो 14 में डिवाइड हो जाएगी, अगर 16 में करना चाहते हो 16 में, 20 में करना चाहते हो 20। सो विद दैट मेथड द होल लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट you should mark the number below that line. You should mark the number below the scale line. तो I first here नॉर्मल स्केल में अगर हम देखते हैं, देखो तो फर्स्ट पॉइंट जहां से फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, 0 पॉइंट ही उसने वहां से दिया होता है। यू कैन सी है
द जीरो इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बट यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पे पूरे फर्स्ट पार्ट को छोड़ के फिर अगला नेक्स्ट पार्ट तक जब मूव करेंगे तब 1 होगा। तो इसमें स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट पार्ट का जो पॉइंट है उसको हम 0 काउंट करेंगे। यहाँ पे क्यों करते हैं ये भी अभी आगे चल के बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट वी काउंट डाउन एज 0, देन आफ्टर दैट 1। यू कैन राइट हियर प्रॉपर as a printing style, as a lettering style. Already we learned 7:5 ratio, something like that. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. So with that method, your whole line divided into equal parts. 13 plus ये 0 वाला एक part. 13 plus 1, 14. So with that method, your whole line divided into equal 14 parts. Clear? So after that, step by step, learn everything step by step. After that, from the below points, draw the all perpendicular lines in that scale area. It means in that rectangular area. So with that, you can easily show the 14 units on your scale, and here the 1 unit represent the 1 centimeter on your plane scale as per your the statement number first as per the book P.S. Gill. Okay, dear? Okay. So with that method, your whole line divided into equal 14 parts. So up to here, if we see, then we only show the units. What units here up to here? Meters, only meters. Only meters. So you can write under the guideline from this side the unit name meters under the guidelines, and that is as per standard 4 or 5 mm. So you can write here meters. But in the statement, he said show the units on meters and decimeters also. But here we only show the meters. Where is the decimeters? Again we draw the decimeter also. And as per the again King Henry Die mother did not cry much. Again as per that we can cover 1 meter equal to what? 10 decimeter. 1 मीटर इक्वल टू व्हाट? 10 डेसीमीटर। तो ये जितने भी हमने एक एक मीटर के 14 पार्ट्स कर दिए हैं, अगर इनमें से एक पार्ट को हम इक्वल 10 पार्ट्स में डिवीजन अगेन दे देंगे तो वो डेफिनेटली 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमने पहला पार्ट 0 वाला इसीलिए छोड़ा था, क्योंकि हमने ये एक छोटा बॉक्स लगा दिया, सपोज इसमें हमने छोटे कॉइन्स डालने हैं, तो 0 वाला पार्ट इसलिए छोड़ा था ताकि हम स्मॉल यूनिट इसी में कर दें। नॉर्मल स्केल में आप देखोगे जैसे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में उसने 25 सेंटीमीटर तक स्केल है, तो सभी 1-1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवीजन दी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे तो 3 घंटे एग्जाम के यहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसने स्टैंडर्ड बना दिया कि स्टूडेंट अगर फर्स्ट पार्ट की डिवीजन कर लेते तो ऑटोमेटिकली दे कैन इजीली डिवाइड द अदर पार्ट्स, और हमने स्मॉल रीडिंग शो करनी है वो वहां से पिक कर लेंगे। आपने मेथड सीख लिया ड्रॉ करने का, दैट्स ऑल। तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट को 0 छोड़ देते हैं, दैट इज यूज फॉर द स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट को अगेन हम स्मॉल यूनिट में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, again we make one acute angle again from that side. See it? We make a one acute angle again from that side. तो इसीलिए आपको बोला कि पहले छोटा acute एंगल ले लो 30 डिग्री का और बाद में 45 डिग्री का, ताकि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट ना करें, कोइंसाइड ना करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30-45 यू कैन टेक एनी, बट हमेशा पहले छोटा acute एंगल लो फिर बड़ा, ताकि दोनों कोइंसाइड ना करें। अब 1 मीटर, वी नो 1 मीटर इक्वल टू व्हाट? 10 डेसीमीटर। तो ये 1 मीटर का हमारे पास जो पार्ट था, अगर इसको
स्मॉल 10 डिवीजन में हम कट कर देंगे तो डेफिनेटली वो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हमने यहाँ पे कंपास, अब मैंने सपोज पहले 1 सेंटीमीटर खोल ली थी बड़े पार्ट से, अब हम कंपास हाफ सेंटीमीटर कर देंगे क्योंकि छोटे पार्ट की डिवीजन देनी है। तो इसलिए हमने हाफ सेंटीमीटर पे सपोज 10 पार्ट यहाँ पे कट कर दिए। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइक दिस। Clear? So marking the 10 like that. Again count down. After cutting again count down. ताकि कहीं गलती ना हो, 10 की जगह 9 आ गया, जहाँ 11 हो गए तो गलत हो जाएगा स्केल। So again count down 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। और हमने इस पार्ट की पहले पूरी लाइन की डिवीजन देनी थी, इसलिए लाइन को यहाँ एंड पार्ट से मीट किया। अब हमने सिर्फ इतनी की लाइन की डिवीजन देनी है, स्टार्ट टू जीरो, इतनी लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है सिर्फ। तो इसलिए एंड पार्ट को सिर्फ जीरो से मीट करेंगे, not from there, only up to here, because हमने इसी लाइन की डिवीजन देनी है 1 then 1 2 3 और ड्राफ्टर के स्केल को सेम उसी एंगल पे खोल के टाइट नॉब को करके एवरी लाइन शुड बी पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन। वो तभी होगी जब ड्राफ्टर के स्केल की नॉब को आप पहले एंगल के ऊपर टाइट कर दोगे। तो दिस लाइन इक्वल डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। क्लियर? So with that your length equal divided into 10 parts। यहाँ पे अब एरिया बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से कवर करना होगा उसको। तो इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल स्केल की तरह पहले 4 लाइन छोटी रख लो, 1 2 जहां जहां कट किया 3 4 और सेकंड फिफ्थ वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर दो, फिफ्थ देन 6 7 8 9 और लास्ट इज 10। तो योर लेंथ इक्वल डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। क्लियर? सो अगर यहाँ पे स्पेस है तो यू कैन राइट 1 2 3 4 5 लाइक दैट। अगर नहीं स्पेस तो फर्स्ट 0 सेंटर 5 और लास्ट 10, इट्स सफिशिएंट। And in that side you can also write under the guideline these units are what meters and these are what here decimeter। Decimeters you can write this। So you represent on the plane scale 2 units, meters and decimeter। Clear? So if we show the 2 units on a scale then that is the plane scale। तो आपने plane scale draw कर दिया according to that। ठीक है, अब स्टेटमेंट को अगेन एक बार पढ़ना है कि ड्रॉ करने के बाद स्टेटमेंट में कुछ पूछ रहा है तो रहा तो नहीं गया। तो स्टेटमेंट में एक चीज रह रही है अभी, वो कह रहा है शो द यूनिट्स ऑन इट 12.4 मीटर्स। ये चीज रह गई अभी। ही सेड प्लेन स्केल भी हमने ड्रॉ कर दिया, ये भी हो गया, मीटर डेसीमीटर भी कवर कर दिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर भी हो गया, 40 मीटर लेंथ भी कवर कर दी, लेकिन ये चीज रह गई शो द यूनिट ऑन 12.4 मीटर्स। ऐसा वो क्यों कह रहा है कि शो द यूनिट्स 12.4 मीटर्स? प्लेन स्केल बनाने का तो काम खत्म हो गया था, यहाँ तक डिजाइन भी कर दिया और ड्रॉ भी कर दिया। ऐसा वो इसलिए कह रहा है कि बीइंग ए डिजाइन इंजीनियर, अब आपने एक पुल बनाया, आपने एक ब्रिज बना दिया। सपोज यू आर ए आर्किटेक्ट इंजीनियर, यू आर सिविल इंजीनियर, यू मेक ए ब्रिज, यू डिजाइन ए ब्रिज, और अब वो ब्रिज बन गया और डर के मारे आप उसके ऊपर से गाड़ी नहीं लेके जा रहे, पता नहीं कब ब्रिज गिर जाएगा, यू हैव नो कॉन्फिडेंस, देन व्हाट इज द फन ऑफ दैट ब्रिज? जीरो। व्हाट इज द फन ऑफ दैट ब्रिज? जीरो। तो सेम वो जानबूझ के आपको ये कह रहा है शो द यूनिट 12.4 मीटर्स, ताकि आपने ये जो स्केल बनाया है इसको आप मेजरमेंट में भी ले सकते हो कि नहीं। अगर आप इसके ऊपर 12.4 यूनिट मेजर कर लेते हो तो इट मींस यू आर सक्सेसफुल इन योर स्केल, इन योर डिजाइनिंग। क्लियर? तो इसीलिए वो दे रहा है जानबूझ के कि आपको, अब आपने एक स्केल ले लिया, आपको उसको यूज करना ही नहीं आ रहा, देन व्हाट इज द फन ऑफ दैट स्किल? जीरो। मैंने कोई भी चीज डिजाइन की, अब मैंने कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर ली, अब मैं उसको यूज में नहीं ले रहा, देन व्हाट इज द फन ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग? जीरो। तो सेम वो आपको इसको यूज करवाना चाह रहा है ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। अगर आपने ये यूनिट शो कर दिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कल को मैं ऐसा स्केल इंडस्ट्री में डिजाइन करके उसके साथ रीडिंग ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। क्लियर? तो 12.4 meters, we show the units with that scale. See here how it's very easy. He said 12 meters, 12.4 meters का मीनिंग क्या है? 12 मीटर एंड 4 डेसीमीटर। तो मीटर का यूनिट ये थे और इधर ऑलरेडी आप 12 ये शो कर रहे हो, तो यहाँ से आप एक एक्सटेंशन लाइन एक्सटेंड कर दोगे
फॉर द डायमेंशनिंग, तो 12 मीटर की ये लाइन चलेगी। और स्मॉल यूनिट के लिए हमने ये बॉक्स रखा है, पहला यूनिट स्मॉल यूनिट के लिए है, तो इसमें हम 4 यूनिट काउंट करेंगे। याद रखना बच्चे यहाँ से 10 से काउंट करना शुरू कर देते हैं कभी कभी, नो, ऑलवेज फर्स्ट 0 देन 1 2 3 4, इसीलिए हमने इसकी रीडिंग 0 और इधर 5 इधर 10 दी है। पहले 0 के बाद 1 आएगा 2, क्योंकि यूनिट तो इधर काउंट हो रहे हैं इसके। तो याद रखना बिग यूनिट ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्मॉल यूनिट ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 4 यूनिट काउंट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आ गया, सपोज ये वाली मैं रीडिंग उठा देता हूँ, सपोज 0 वाली ऊपर, ये वाली लाइन मैं आपको उठा के बताता हूँ। सपोज ये वाली रीडिंग उठाता हूँ मैं, सपोज, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि पॉइंट 0 है। अगर यहाँ की रीडिंग उठा देता हूँ एक पॉइंट आगे की, तो ये हो जाएगा 12.1, एक पॉइंट और आगे ले लिया तो 12.2, 12.3, लेकिन मुझे चाहिए 12.4, 5 से एक पीछे, तो ये 4 वाली रीडिंग को मैं अब ऊपर उठाऊंगा। क्लियर, ताकि प्रॉपर एग्जामिनर को क्लियर हो, टच नहीं करना, उससे 1-2 mm हटके उस लाइन से ऊपर एक्सटेंशन लाइन, लाइट लाइन उठा देनी है। एंड दिस रीडिंग शो दैट इज योर 12.4 meters. You can show the distance with the proper concept of arrowhead 3:1 and concept of dimension line. It should be light with 2h and extension line also with 3h. So this is the 12.4 meter units you represent on your scale. Clear? So it means with that you easily use your plane scale in the industry after the design. आफ्टर द डिजाइन, तो अगर आपने 12.4 मीटर ले लिया तो 14 मीटर तक आप कोई भी रीडिंग स्केल से लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ना व्हाट इज, ये सारा कर लिया हमने, डिजाइन कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, डिजाइन कर लिया, ड्रॉ कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, बट अगेन हम यहाँ ये नहीं समझ पाते ना, टीचर ये नहीं समझा पाते कि व्हाट इज द फन ऑफ दैट स्केल, व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब तक हम बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताएंगे, आप कोई भी थ्योरम कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हो, आप कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो, जब तक आप उसको उसकी प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं बताएंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट कभी भी उसके ऊपर ज्यादा डेप्थ में जाके सोचेगा नहीं। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट स्केल, क्या हो सकती है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये हो सकती है, सपोज कि मैं, सपोज आई एम आर्किटेक्ट इंजीनियर, आई वांट टू ड्रॉ ए कॉलोनी, मैं एक कॉलोनी ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट का टेंडर आ गया कि मैंने ये एक कॉलोनी 10 एकड़ में या 20 एकड़ में या 2000 एकड़ में ये कॉलोनी मैंने एक डेवलप करनी है, और उस कॉलोनी की रिक्वायरमेंट है कि उस कॉलोनी में मैक्सिमम जो लेंथ है, मैक्सिमम जो रोड्स की विड्थ है वो मैं 14 मीटर रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं, और 14 मीटर के अंडर अंडर काम चलेगा सारा, 14 मीटर के अंडर अंडर सारा काम चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी होगा कि मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ तो मैं मार्केट जाऊँ तो मैं मार्केट से ढूंढूं कि 14 मीटर का स्केल दो भैया, तो ये तो स्केल 1 मीटर का भी नहीं है, इतना बड़ा है, तो 14 मीटर का स्केल तो छत से ऊपर निकल जाएगा, इतना बड़ा स्केल रखना कहाँ पे, है ना? तो इस केस में क्या करूंगा मैं, बीइंग ए आर्किटेक्ट इंजीनियर, आई फर्स्ट डिजाइन ए प्लेन स्केल लाइक दैट 14 मीटर स्केल, मैं एक ऐसा 14 मीटर का स्केल अपनी ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर दूंगा। तो फिर क्या होता है कि मार्केट में कार्डबोर्ड की ब्लैंक स्ट्रिप मिल जाती है, ऐसी कार्डबोर्ड की स्ट्रिप मिल जाती है, आपको पता होगा मार्केट में स्केल की तरह, और उस स्केल की स्ट्रिप को मैं इस स्केल के साथ लगा के ऐसे यहाँ पे मार्किंग कर लूंगा साथ साथ। अब ये मार्किंग मेरी 14 मीटर वाली स्केल की होगी। अब इस स्केल के साथ मैं कोई भी वो मैप बनाऊंगा तो वो सारे मैप के ऊपर जो रीडिंग जाएगी वो मीटर और डेसीमीटर में जाएगी, और उस स्केल के साथ मैं 14 मीटर की एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर पाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली वो मेरी जो ड्राइंग है 40 मीटर जो इतना बड़ा स्केल था वो इतने से स्केल में आ गई। तो पूरी जो ड्राइंग है वो किस स्केल में आ गई, रिड्यूसिंग में, रिडक्शन स्केल में आ गई। तो जितने भी आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर होते हैं स्पेशली रिडक्शन स्केल यूज करते हैं, मैकेनिकल भी करते हैं जब ट्रक या शिप की डिजाइन करते हैं, ठीक है? तो वो सारी जो ड्राइंग है वो ऑलरेडी मेरे पास एक स्मॉल स्केल में आ गई, एक रिडक्शन स्केल में आ गई। 14 मीटर जो लंबा स्केल था उसको मैंने सिर्फ इतने से स्केल में ड्रॉ कर लिया, समझ आ रहे हो?
अगर मैं 14 मीटर लेंथ को इतनी स्मॉल लेंथ के थ्रू शो करता हूँ, तो मैं कौन सा स्केल यूज कर रहा हूँ एज पर यूसेज ऑफ स्केल, रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल। तो ऑटोमेटिकली जो मेरी बड़ी कॉलोनी की ड्राइंग थी वो छोटे स्केल के साथ छोटी 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 बनती गई। इज इट क्लियर? अब उस स्केल के उस ड्राइंग के ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर भी लेंथ है तो वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। उस स्केल के ड्राइंग के ऊपर सपोज 8 सेंटीमीटर लेंथ है तो वो 8 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। 14 मीटर लेंथ है तो वो 14 सेंटीमीटर लेंथ है तो 14 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। और इवन इन द स्मॉल यूनिट्स अगर वो 1.3 है, जब 1.3 है तो वो 1 मीटर 3 डेसीमीटर को शो कर रही है वहां पे। जब 2.7 है तो वो 2 मीटर 7 डेसीमीटर को शो कर रही है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फॉलो किया? अब ये सारा हमने फंडा जो पिछले 1 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, मोर देन 1 आवर हो गया हमें, ये सारा फंडा 1 घंटा 20 मिनट हो गया हमें, 21 मिनट। तो ये जो सारा पिछले 1 घंटे से हम लर्न कर रहे हैं, 1 घंटा 20 21 मिनट से लर्न कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका फंडा क्या है, एप्लीकेशन क्या है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट। तो जब तक टीचर, मैं रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स टीचर्स को भी कह रहा हूँ, जब तक आप लोग अपने स्टूडेंट्स के माइंड में अपनी डेरिवेशन की, अपनी प्रॉब्लम्स की, स्टेटमेंट्स की मीन्स, और अपनी जो आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हो उसका, जब तक आप उसके दिमाग में आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं डालेंगे, तब तक वो स्टूडेंट कभी भी डेप्थ में जाके उस स्टेटमेंट के ऊपर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डालो तो ये वो सारी उम्र। अब मैं अगर मैं सिविल या आर्किटेक्ट इंजीनियर को यहाँ ये समझा दूँ या वो ये यहाँ समझ ले, तो ये सारी उम्र याद रखेंगे यार हमें कहीं भी मैप जरूर करना पड़ सकता है रिडक्शन स्केल में, और हमने रिडक्शन स्केल यूज कैसे करना है। अब वो कर भी देते हैं, कुछ आर्किटेक्ट इंजीनियर कर भी देते हैं रिडक्शन स्केल, रट्टा लगा होता है, कर रहे हैं जी, इसको रिडक्शन स्केल है, हो गया। लेकिन डेप्थ में क्लियर नहीं है कि क्यों हो रहा है, एक्चुअली हो क्यों रहा है, वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है? मोर देन 99% फैकल्टी मेंबर्स एंड टीचर्स अच्छी तरह समझाते हैं, सारा कुछ डालते हैं, लेकिन मेरे जैसे जो 1-2% हैं जो डेप्थ में नहीं डाल पाते कि एप्लीकेशन क्या है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डेप्थ में स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज। आज अभी लेक्चर ऑलरेडी 20-23 मिनट आगे चला गया, तो आज अभी अप टू प्लेन स्केल हमने अच्छी तरह समझ लिया, इतना ही। कल हम डायगोनल स्केल करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना स्टार्ट है, तो मैं इसलिए एक एफर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग घर बैठे लर्न कर पाए। जो लॉकडाउन के कारण स्कूल या कॉलेजेस या आईटीआई या पॉलिटेक्निकल्स में स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे, वो घर बैठे इस सब्जेक्ट को लर्न कर पाए। दिस इज माय एफर्ट, एंड दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए मैंने अपने सारे लेक्चर जो है फेसबुक पे डाल रहा हूँ कि इजीली कोई भी पर्सन जो लर्न करने वाला है, जो पे नहीं कर सकता, वो भी इसको अच्छी तरह लर्न कर पाए। तो अगर कुछ पढ़ाते कुछ भूल चुक हो गई हो, कुछ गलत कह दिया हो, किसी फैकल्टी मेंबर को कोई मेरी बात हर्ट हुई हो, या मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो, तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आप मेरे में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपकी suggestions का always welcome from my side. You can suggest me, you can write me on my number, on my WhatsApp and on my Facebook. Thank you very much.